Hi Gen Z, how are thee? There's this parallel career thing happening. It's not like the gen before you did not do it, but you do it so well. Lots of people know how to make money. Eventually, everybody ends up, क्योंकि काम करना पड़ता है, you will end up making money. How to invest it properly, that becomes a big प्रॉब्लम. सो यस सिक्योरिटीज और रेड एफएम ने शुरुआत की है इस चीज की जिसका नाम है वी लव वोंगा, जहां पर अस along with yes securities have gone out to colleges and done what I wish was done when I was in college, which is gone out and actually spelled out how you can financially manage yourselves, how you can grow your money, how you can invest it. Today to talk about this, I'm very excited, proud and happy to have the MD and CEO of Yes Securities, Mr. Anshul Azare, to talk with us. Hi Anshul, thank you so much for having me at Yes Securities. Thank you for coming to our office, Malaysia. And I want today mostly Gen Z to understand exactly the concept of how do we think about money, how do you invest it better, and how do you do well with it. So let's start with first of all ये जो हमने एकदम Gen Z नाम चुना है, which is we love Wonga. इसका अर्थ क्या है? What does it mean? I want to hear it from you. Yeah. So Wonga basically is a slang for money only. So but अगर हम dictionary meaning देखें Wonga का, so it also tells you that it is something against which you can trade as a legal tender. And this word originates from a Romanian word for wonger, which actually means coal. Maybe 15th century, 16th century, the coal was one of the barter system हम जिसको बोलते थे. So ये कहीं से कहीं वहाँ से originate हुआ है. पैसा. देखिए पैसे को आप कोई भी नाम दे दो सबको उससे प्यार है. By the way, I must tell you, for the longest time I thought Wonga was a Chinese Manchurian dish. So I'm glad. आप पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? When everybody says money may not be everything, but everything else is behind this word called money. It is a very very important asset which you should be very careful with. और पैसा कभी भी enough नहीं होता है. जितना भी है और जैसा भी है उसको कितना आपको जाना है, उस पैसे को कहाँ लेके जाना है और उस पैसे के साथ क्या करना है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है. ओके, सो वी लव वोंगा का विजन क्या है? व्हाट डिड वी वांट टू अकॉम्प्लिश? इंटेंट क्या था इसका? जितने भी यंग जनरेशन है, स्कूल जनरेशन गोइंग जनरेशन है, कॉलेज गोइंग जनरेशन है, वहाँ हमको मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो सिखा रहे हैं, बट एक वेरी जनरल लेवल पे कि हाउ टू मैनेज मनी वेल ये नहीं सिखा रहे हैं हम. करेक्ट. एंड विच आई फील जैसे कि हम मोरालिटी सिखाते हैं स्कूल्स में, वैसे ही मैनेजिंग मनी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, विच इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दीज किड्स हु आर इन स्कूल टुडे दे डोंट हैव टू बॉदर टू मच अबाउट मनी, बट द मोमेंट दे गो टू कॉलेज एंड हॉस्टल, मैनेजिंग मनी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड हेंस आई थिंक बचपन से सिखाया जाए तो अच्छा चीज़ है. I think like with these initiatives, we're able to tell them better to manage their money right from the start, because there's also, let's face it, lots of people give you really weird advice or wrong advice about money, and then, you start developing a crazy so, अगर relationship. आपका अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है मनी को लेके, then you will be able to disseminate, also differentiate between एक सही एडवाइस और गलत एडवाइस. Imagine Anshul, today you are here, but today you're also, आपका एक Gen Z younger self है. What would you tell that person, that Anshul, about investing? And where do they start? एक इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे क्या मतलब व्हाट इज माय वैल्यू टू द वर्ड मनी. उस वहाँ से हम शुरू करना चाहिए और उसके बाद द एवरी इंडिविजुअल विल हैव अ डिफरेंट वे ऑन द रिस्क साइड ऑफ मनी. सो मनी को ग्रो करना है, ये तो सबका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, मनी को ग्रो करना है, बट मनी को किस पेस से ग्रो करना है, मनी को कितना सेव करना है, मनी के साथ कितना इन्वेस्टमेंट करनी है, कितना अपने आप पे खर्चा करना है, बिकॉज यू हैव टू लिव अ लाइफस्टाइल ऑल्सो, राइट. सो एनी स्पेंड, एनी एक्टिविटी अराउंड मनी इज जस्टिफाइड एज लॉन्ग एज दिस व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड इन सम सॉर्ट ऑफ फैशन आप उसको अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा के रख पा रहे हैं. वो बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मनी को लेके. आजकल का एक 18 साल का युवक जो है या युवती जो है, अगर आप उनको टॉप 3 फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, तो जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ उन्होंने कमाना शुरू किया है, व्हाट इज द टॉप 3 एडवाइस विच यू वुड गिव देम? 1, पहली एडवाइस तो ये कि अभी से इन्वेस्टमेंट और सेविंग शुरू कर दें. दूसरा एडवाइस ये कि जितना जल्दी करेंगे और जितना समय देंगे इस इन्वेस्टमेंट को, उतना लॉन्ग टर्म में आपको, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसका एडवांटेज मिलेगा. तीसरा है कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट्स के पीछे ना जाएं. मतलब पैसा इज नॉट रॉकेट साइंस, आप बताना चाह रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, पैसा मैनेज करना बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू
आर द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें वो अपने फाइनेंस को डाल सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकता है? तो जो थोड़ा इवॉल्व हैं वो डायरेक्टली स्टॉक्स लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर जहां हमारी समझ थोड़ी कम है या हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो आई थिंक देयर आर म्यूचुअल फंड्स विच कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, एंड देयर आर अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हम जिनको बोलते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं ये, और इसमें भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थ्रू वी लव वोंगा, व्हाट आर द यूनिक अपॉर्चुनिटीज जो आपको लगता है कि हम यूथ को ऑफर कर रहे हैं? वन इज गिविंग देम अवेयरनेस अबाउट दिस। तो ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम जब 35 साल के हो जाएंगे, जब हमारे बैंक में कुछ बैलेंस आ जाएगा, तभी हमें इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है। आज हम विथ नॉर्मल इनकम भी हम 500,000 रुपए की वैल्यू से भी आप इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर एक्टिविटी ऑफ वी लव वोंगा कैंपेन। व्हेन यू गेट योर सैलरी, जो भी है उसका ब्रेकअप आप हमें बता सकते हैं, हाउ वी शुड स्पेंड इट? देयर इज नो राइट और रॉन्ग फार्मूला कि ये 20% है या 25% है या 30% है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज योर करंट एक्सपेंसेस। जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, जैसे ही आप देखते हैं कि आपके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ रही है लोगों की, सबसे पहला काम आपको करना चाहिए अपना इंश्योरेंस, बिकॉज वो इंश्योरेंस आज आप जितनी जल्दी यंग एज में ले लेंगे, उतना प्रीमियम आपको कम देना पड़ेगा। Superb. On that note, I want to start with my Wonga rapid fire. Are you ready? कोशिश करेंगे। हाँ. Okay. Anshul, what is the one thing you would advise Gen Z to invest in? Equities. What is the one thing जिसमें Gen Z को बिल्कुल invest नहीं करना चाहिए? ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में। Shares or property? शेयर्स। Shares or gold? शेयर्स। Shares or mutual funds? For me it is shares because I understand this business. For those who do not understand, maybe mutual funds. My last question. आपके पास कितने tattoos हैं? Oh wait, that was रणवीर सिंह का क्वेश्चन आपके लिए था। एंड फाइनली, अगर आपको जाने से पहले हमारे जेन जी के ऑडियंस को कुछ कहना होता? जिस पॉइंट्स के बारे में हमने बातचीत करी, आई थिंक इफ दे स्टडी अ बिट ऑन दैट साइड, आई डोंट थिंक दे विल नीड टू मच ऑफ एन गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड ऑन दैट फ्रंट, बट इफ दे नीड सम क्लैरिफिकेशंस, वी आर मोर देन हैप्पी टू असिस्ट देम। I love Anshul, you are just so clear and so honest. It's like आपको ज्यादा जरूरत नहीं, मगर है तो हमारे पास आ जाओ। Thank you so much, ladies and gentlemen, your MD and CEO. Please give him a big hand. Investment in securities markets are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.